Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 8th English medium subject English. Friends, today we will start our new chapter, The Sumit Within. Okay, The Sumit Within, this chapter was written by H.P.S. Ahluwalia. Okay, he was the writer of this lesson. In this lesson, Major H.P.S. Ahluwalia, he was himself wrote this letter. He was he was a member of the first successful Indian expeditions to Mount Everest in the year of 1965. Everest is the highest mountain peak in the world. Everyone know. Okay, so Ahluwalia tells about his experience and feeling while he stood at the summit of the Mount Everest. Okay, while he stood on the summit of the Everest, he felt very glad, but his joy was tinged with sadness. He did not know the reason behind the sadness. He thought that he might be due to the reason that there was no other summit higher than the summit of Mount Everest to corner. And what happened with there? This is everything he described in this lesson. Let's see what is there. Before you read, here given one paragraph that about lesson. Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Whenever in the year of 1965 the Mount expedition was happened, at that time he was the member of that. Okay, how did he feel when he stood on the highest point in the world? Which kind of the feeling he has whenever he was standing or he was stood at the highest mount peak in the world? Let us hear his story in his word. Okay, he described his own experience in his own word. Okay, in this story, climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. Okay, so this is the very difficult situation in which he was doing this thing, क्योंकि जो टॉप के ऊपर शिखर जो होता है, टॉप जो होता है, सुमित मीन्स शिखर, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ना दैट इज वेरी टफ फॉर एनीवन. ओके, सो ही डिस्क्राइब of all the emotions surge thought me as I stood on the summit of the Everest. Writer start his experience whenever he stand on the जब वो उस चोटी के ऊपर खड़े थे, when he show the downside, तो मीलों तक फैले हुए बहुत जो क्या बोलते हैं उसको, कि जो दृश्य था, जो सीन था, उसको देखकर उनके मन में जो है वो अचानक जो इमोशन जाग उठे. ओके, लुकिंग फॉर अ माइल्स ऑफ अ पैनोरामा बिलो अस. ओके, पैनोरामा का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, दैट इज कॉल्ड पैनोरामा. तो वेन एवर राइटर वॉज स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द summit of Mount Everest, he looking at the below side and whatever he see, okay, surge mean across suddenly and intensely. Okay, so whenever he show the downside, जब उन्होंने नीचे देखा तो नीचे का जो सीन था वो देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं. ओके, the dominant one I think was the humility, the physical in the seem to say thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tingle of sadness. Okay, whenever he show the downside of the summit, okay, जब उन्होंने नीचे देखा तो उनके अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी, some voice will coming into inside. okay, और वो भगवान को थैंक बोल रहे थे, उनको भगवान को थैंक बोलना था, थैंक गॉड टू द गॉड. ओके, सो फिर भी जो वो सक्सेस हुई उसके बारे में
वो बहुत खुश होने की बजाय उनके मन के अंदर की जो फीलिंग्स थी वो कैसी थी, सैडनेस वाली थी। ओके, was it because I had already done the ultimate into the climbing and there would be nothing higher the climb and all roads hereafter would let down। जैसे उनके अंदर की फीलिंग खुशी की होनी चाहिए, वो खुशी की नहीं हो रही थी। एट द टाइम ही फेल्ट वेरी सैड। ओके, उनको लगा कि क्या इसी कारण, क्योंकि उन्होंने बहुत ऊंची चढ़ाई, सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची चढ़ाई कर ली थी, और ये कोई दुनिया के अंदर भी, कोई वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई पहाड़ नहीं होगा जो इतना ऊंचा होगा। फिर भी उसके बाद भी सभी जो नीचे के रास्ते थे वो वापस ही तो जाना है, तो ठीक है, लेट डाउन। तो उनके मन में ये क्वेश्चन हो रहा था। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by the deep sense of joy and thankfulness. Okay, while you क्लाइंबिंग द एवरेस्ट, जब आप एवरेस्ट के ऊपर चढ़ते हैं तो आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी, ओवरवेल्म्ड बाय डीप एंड सेंस ऑफ जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और ये जो खुशी है, ये जो आपके मन के अंदर जो खुशी है वो पूरे जीवन रहने वाली होती है। इट वॉज अ जॉय विद इन द लास्ट लाइफ टाइम, बराबर हमेशा के लिए रहने वाली होती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस योर कम्प्लीटली, जो एक्सपीरियंस होते हैं, द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस यू चेंज अ लॉट इन योर्स। ओके, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेनियर्स इज नेवर द सेम अगेन। ओके, यहाँ पे राइटर बताते हैं कि जो इंसान जो है वो पहाड़ के ऊपर आया है वो पहले जैसा कभी नहीं रह सकता। ओके, ही हैज़ टू चेंज। ओके, ही चेंज्ड। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग द एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प remarking about other summit. Okay, whenever writer completing his climbing, जब एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के बाद वो बता रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के पीछे की तरफ देखता हूँ, ठीक है, तो हेल्प टू रीमार्किंग अबाउट द अदर सुमिट, द सुमिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल, नो ईजियर टू क्लाइम। क्या बता रहे हैं यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जब भी मैं देखता हूँ तो दूसरा कोई जो सुमिट है, बराबर है, उसके बारे में बात किए बगैर मैं नहीं रह सकता। और उनके राइटर की जो अंतर की आत्मा है, बराबर अंतरात्मा जिसको कहा जाता है, वो इस सुमित जैसा, इस टॉप के ऊपर, शिखर के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने विक्ट्री अचीव की है, वो किसी भी माउंटेन क्लाइंबर के लिए कम कठिन नहीं होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, बराबर किसी भी माउंटेन क्लाइंबर के लिए ये क्लाइंब करना बहुत ही हार्ड होता है। राइटर यहाँ पे बताते हैं, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द सुमिट, once the physical exertions has gone, whenever he came down from the सुमिट, ओके, मीन्स जब वो उतर रहे थे तो उसके समय, उस टाइम पे जो उनकी जो फिज़िकल जो एग्जीक्यूशन, मतलब जो फिज़िकली उनको जो थकान महसूस हो रही थी वो उतर गई थी। जब चढ़ते टाइम उनको जो थकान हुई थी वो उतर गई थी, क्योंकि उनके अंदर इतनी खुशी थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, वाई हैड आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। राइटर आस्क्ड हिमसेल्फ, राइटर ने अपने आप से क्वेश्चन किया, राइटर आस्क्ड हिमसेल्फ दैट मैंने एवरेस्ट के ऊपर क्यों क्लाइंब किया। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग सुमिट हैव सच अ होल्ड ऑफ माई इमेजिनेशन। राइटर आस्क्ड हिमसेल्फ नेक्स्ट क्वेश्चन के सुमिट पर पहुंचने की जो प्रोसेस थी वो मेरी इमेजिनेशन, मतलब मेरी कल्पना से इतनी मजबूत पकड़ क्यों मैंने बना ली, बराबर है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे। राइटर टोल्ड हियर दैट ये तो एक कल की बात हो चुकी, ये बात बन चुकी है, बराबर, ये बात बीत चुकी है, जैसे बीते हुए कल की बात हो, बराबर है। विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, बराबर, जैसे हर दिन गुजरता है, गुजरने वाला जो हर एक दिन होता है उसके साथ ये बात कैसी होती जाएगी, पुरानी होती जाएगी, बराबर दूर होती जाएगी,
रिमोट मीन्स दूर होना, यहाँ पे हम पुराने के मीनिंग में लेंगे। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, वुड माई मेमोरीज फैड स्लोली अवे, और धीरे धीरे जो यादें हैं वो भी क्या हो जाएगी, स्लोली अवे, मतलब कि वो फैड हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी, बराबर। जो यादें हैं वो भी कैसी हो जाएगी, फैड अवे, मतलब कि धुंधली हो जाएगी। ऑल दिस थाट्स लेड मी टू द क्वेश्चन माई सेल्फ, ये जो सारी जो बातें हैं वो मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ, एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। क्या क्वेश्चन करते हैं कि वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, लोग जो है वो माउंटेन क्लाइंब क्यों करते हैं, वाई द पीपल क्लाइंब माउंटेन, इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ नॉट ईजी टू एनी वन, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी द अदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट्स अ ग्रेट डिफरेंसेस। ओके, इसका जो जवाब है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इतना ईजी नहीं है। इसका सबसे इजी उत्तर आंसर क्या होगा, जैसे कि दूसरे जो लोगों ने कहा था, क्योंकि ऐसा होता है, बराबर है कि बहुत सारे डिफ़िकल्टी इसके अंदर आती है, बहुत सारी डिफ़िकल्टी इसके अंदर रहती है। मैन टेक्स डिलाइट इनटू ओवर क्लाइंबिंग ऑब्स्टेकल्स। ओके, जो इंसान होता है उसको ऑब्स्टेकल मतलब अड़चने, जो उसके ऊपर जो ओवरकमिंग मतलब कंट्रोल करने में बहुत मज़ा आता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए जो बीच में ऑब्स्टेकल आते हैं, जो अड़चने आती है, जो बाधाएं आती है, वो कैसी होती है, फिजिकल होती है, शारीरिक होती है। अ क्लाइंब टू सुमिट मीन्स एंड्रियंस, जो पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है, बराबर है, जो पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है वो एक कैसा होता है, एकदम सहन शक्ति मांग लेता है। प्रेजेंटीज एंड विल पावर, द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट exhilarating as it was for me also. Here writer described that whenever he climbed onto the mountain, उनके अंदर की जो सहन शक्ति थी, उनके अंदर का जो डिटर्मिनेशन था, उनकी जो विल पावर थी, इच्छा शक्ति थी, ये सब फिजिकल उनका जो कैरेक्टरिस्टिक थे, जो उनके शारीरिक गुण थे, वो बहुत ही उनके लिए एक अंदर से एकदम खुशी देने वाली चीज़ थी। और वो राइटर बता रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस वाला एक्सपीरियंस था। I have a more personal answer to the question. Writer here described that he has a more personalized answer about this question. मेरे पास इस क्वेश्चन का मेरा पर्सनल आंसर है। From my childhood, I have been attracted by the mountains. Whenever he was in his childhood, he was attracted with the mountains. I had been the miserable lost when away from the mountains. Writer, whenever he was in his childhood, जब वो पहाड़ों से, मैदानों से दूर जाने में उनको बहुत ज़्यादा दुख होता था और वो सैड हो जाते थे, उदास हो जाते हैं। माउंटेन्स आर द नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन को क्या है, नेचर है, प्रकृति का सबसे सुंदर जो रूप होता है वो क्या होता है, माउंटेन होता है। Their beauty and the majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a mean of the communal with God. Here writer describe कि जो एक ब्यूटी होती है, एक बहुत ज़्यादा सुंदरता होती है, तो ये माउंटेन के अंदर देखने को मिलती है। और दूसरे बहुत सारे लोग हैं उनकी तरह, जो राइटर बोलते हैं कि मुझे ऐसा विश्वास है कि भगवान से बहुत ही ज़्यादा क्लोज बनने का एक कोई आप कह सकते हो कि अगर इफ़ यू वांट टू गो टू नियर द गॉड, ठीक है, भगवान के पास आपको अगर जाना है तो आप किससे जुड़े रहिए, प्रकृति से जुड़े रहिए, नेचर से जुड़े रहिए, ऑटोमेटिकली यू विल अटैच विद द गॉड। ओके, वंस हैविंग द ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। ओके, एक बार चलो मैं मान लेता हूँ, एक बार स्वीकार कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन बन जाता है कि लेकिन एवरेस्ट ही क्यों, एवरेस्ट के ऊपर ही क्यों, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द
द माइटीएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। ओके, क्योंकि ये सबसे पहला तो उसकी कैरेक्टर, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माउंट एवरेस्ट, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट है और बहुत सारी कोशिश करने के अंदर लोग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप उसके ऊपर पहुंचते हो, ओके, इट टेक द लास्ट ounce of one's energy. It is the brutal struggle with a rock and ice. और बहुत सारी कोशिश करने के बाद जब आप उसके ऊपर पहुंच जाते हो, बराबर है, तो ये जो चट्टानें होती है और बर्फ़ होता है, उनके साथ जो संघर्ष होता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देने वाला होता है। वंस टेकन अप इट कैन बी गिवन अप द हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट शेक. The passage back is as the difficult as the passage onwards, and then when the summit is climbed, there is the exhilarations of joy of having done something, the sense of battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. Here writer describe about his feeling towards the experience or towards the mountain climbing. जब एक बार राइटर टोल्ड दैट जब वो एक बार वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है तो आधे रास्ते में छोड़ नहीं सकता है. ही डिडंट वांट टू लीव दैट पाथ. ओके, चाहे उसका खुद का जो लाइफ है वो ही क्यों दाव पे ना लग जाए. ठीक है, राइटर टोल्ड हियर दैट इफ वंस लाइफ इज ऑन टू द वे, ठीक है, सो ऊपर जाने का जो रास्ता कितना भी टफ क्यों ना हो, ठीक है, उतना ही टफ जो होता है वो उतरने का होता है. ठीक है, और जब टॉप के ऊपर जब एक बार आप विक्ट्री अचीव कर लेते हो उसके बाद हमारे मन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, ऐसी हमको फीलिंग आती है. ठीक है, इस तरीके की फीलिंग जो है वो राइटर को अभी हो रही थी. ग्लिम्पिशिंग अ पीक इनटू द डिस्टेंस आई गॉट transported to another world. I experience a change within myself, which can only be called the mystical by its beauty, aloofness, might, roughness, and the difficulties encountered on the way. The peak draws me to it as Everest did. It's a challenge that it is difficult to resist. Here writer describe about his feeling कि whenever he show, ठीक है, any of the mountain, still mountain, जब भी वो कोई ऐसे पहाड़ को देखते हैं तो वो दूसरी दुनिया में चले जाते. ही वेंट टू द अनदर वर्ल्ड, और अंदर से उनको कुछ चेंज फीलिंग होती है. ही डिस्क्राइब हिज फीलिंग अबाउट द माउंटेन. उनको ऐसा लगता है कि वो स्पिरिचुअली अटैच है माउंटेन के साथ, और उनकी जो ब्यूटी है, उनका जो अट्रैक्शन है, ठीक है, पहाड़ का जो शेप होता है, उसके जो उबड़ खाबड़ वाले रास्ते होते हैं, एवरीथिंग, जो उनकी जो टफनेस होती है पहाड़ की, और ये सब चीज़ की वजह से राइटर वॉज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द माउंटेन. और उनको ऐसा लगता है कि एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना एक चैलेंज की बात है, और जिसका वो कभी भी जो है वो अस्वीकार नहीं कर सकते. उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, और दिस काइंड ऑफ द चैलेंजेस उनको स्वीकार करने में उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. सो ही डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज फीलिंग टुवर्ड्स द माउंटेन. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. Writer told here कि looking back, if I went to the back of my life, मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैंने अभी तक still here अभी तक ये तो बताया ही नहीं है कि मैंने जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई क्यों की. Why I climbed the Mount Everest. It is like the answering a question why you breathe. ठीक है, इसका आंसर यही है कि
If you ask me why writer told here that if you ask me why I climbed the Mount Everest, तो उसका आंसर ये है कि आप सांस क्यों लेते हो। जितना ज़रूरी हमारे लिए सांस लेना है उतना ही ज़रूरी राइटर के लिए ये क्लाइंब करना था। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने नेबर को हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ गुड एक्ट, आप अच्छे काम क्यों करते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसका कोई फाइनल आंसर परफेक्ट आंसर देना पॉसिबल नहीं है। एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। राइटर टोल्ड दैट there is not easy way to the fact that Mount Everest is an easy for a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of its own smallness in his large universe. Writer told that कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्लाइंब करना कोई फिजिकली, माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्लाइंब करना खाली एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, स्पेशल मैनर होना चाहिए, हमारे अंदर एक ऐसी विलिंग पावर होनी चाहिए, तो तब भी हम इतने बड़े जो टारगेट होते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टिल हियर वी स्टॉप्ड आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर, ठीक है, द सुमित विथ इन। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग विथ दिस एक्सप्लेनेशन and understood what is there into the lesson. Writer described his own experience while he was climbing over the Mount Everest. So regarding this PDF, whatever the question answers are there, that I will send you through the PDF that you have to write down in your notebook. In our next video we will discuss about the remaining part of the lesson. Okay, bye, take